دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرح المفرداتی، مفرد الفاظ کی تشریح۔ تو العقار، عقار کہتے ہیں کلو ملکن ثابتن کل ارض والداری، ہر وہ ملکیت کے جو ثابت ہو۔ تو ثابت ملکیت یعنی موجود ملکیت، کل ارضی جیسے کہ زمین ہے اور گھر ہے، اس کی جمع عقارات۔ الجرتو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اناء من خزفن، ٹھیکری کا برتن، مٹی کا برتن۔ تو جمع اس کی جرار آتی ہے۔ تو خزف کہتے ہیں وہ مٹی کے جو بجتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ الحکم، حکم کسے کہتے ہیں؟ من یختار للفصل بین المتنازعین، تو حکم کہتے ہیں جس کو اختیار دیا جاتا ہے فیصلہ کرنے کا دو جھگڑنے والوں کے درمیان۔ حکم کی جمع حکمہ۔ اور تحاکم الخصمان الی الحکم، تو دونوں یعنی دو مد مقابل دو جھگڑنے والے حکم کے پاس گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا رفع خصومتہما الیہ، یعنی اپنے جھگڑے کو حکم کے پاس لے گئے۔ الجاریتو، تو جاریہ کہتے ہیں الفتیۃ من النساء، عورتوں میں سے جو دوشیزہ ہوتی ہے تو اسے جاریہ کہتے ہیں، یعنی لڑکی کو۔ جمع اس کی جوار ہے، جوارن، اور مراد جاریہ سے یہاں البنت لڑکی ہے۔ الولد، ولد کہتے ہیں المولود، مولود کو کہتے ہیں یعنی بچے کو۔ تو یقال للواحد والجمع، تو ولد یہ واحد اور جمع، وللذکر والانثى و مذکر و مؤنث، اور چھوٹے بڑے سب کے لیے ولد بولا جاتا ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے یعنی تم آدمیوں کے لیے اس کا آدھا ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا، اگر ان بیویوں کے اولاد نہ ہو۔ تو دیکھیے اگر بیویوں کے اولاد نہ ہو تو پھر وراثت کا حکم یہ ہے کہ عورتوں جو بیوی کا مال ہوگا اس میں سے شوہر کو آدھا ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو پھر 1/4 ملے گا، یعنی ربع ملے گا۔ اور شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو شوہر کے مال میں سے بیوی کو اگر اولاد نہ ہو تو ربع ملے گا، اور اولاد ہو تو سمن ملے گا، یعنی 1/4 ملے گا یا 1/8 ملے گا۔ یہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ نکحا ینکحو، ضربہ یضرب سے تزوجہ، یعنی اس نے نکاح کیا، شادی کی، مصدر نکاح ہے۔ وَأَنْكَحَ فُلَانٌ الرَّجُلَ الْمَرْأَةَ، اور باب افعال میں جب لے کر جائیں گے تو اس کا معنی ہوگا نکاح کرانا، تو فلاں شخص نے مرد کا نکاح کرا دیا عورت سے، یعنی زوجہ ایہا، اس کا مطلب ہے اس نے نکاح کرا دیا اس آدمی کا اس عورت سے۔ تو زوجہ باب تفعیل سے ہے۔ تقول، آپ کہتے ہیں انکحنی ابی بنت امی، نکاح کرا دیا میرے والد نے میرے چچا کی بیٹی سے۔ تو انکحہ دیکھیے نکاح کرانے کے معنی میں، ایسے کہتے ہیں انکحہ حامد ابنہ بنت صدیقہ، نکاح کرا دیا حامد نے اپنے بیٹے کا اپنے دوست کی لڑکی سے، اپنے دوست کی بیٹی سے۔ وفی القرآن الکریم علی لسان شعیب علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی قرآن کریم میں ہے قالا، کہ حضرت شعیب نے یہ کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ نکاح کرا دوں تمہارا اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک سے نکاح کرا دیا تھا۔ تو سورہ قصص میں ہے یہ، تو یہاں نکاح کرانے کے معنی میں دیکھیں۔ وفی الحدیث، اور حدیث میں ہے لا ينکح المحرم ولا
युनकिहु वला यख्तुबु, तो ला यनकिहुल मुहरिमु, हालत एहराम में कोई शख्स मुहरिम जो है वो निकाह न करे, वला युनकिहु, ना निकाह कराए, वला यख्तुबु, और ना पैगाम निकाह भेजे। अनफकल माला, उसने माल खर्च कर दिया, तो बाब इफ़ाल से है अनफका, इसका मतलब सरफहू, यानी उसको सर्फ कर दिया, खर्च कर दिया। क़ाल तआला, अल्लाह ताला फरमाता है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो दिया हमने उनको, तो जो हमने उनको दिया उसमें से युनफ़िक़ून, खर्च करते हैं। तो ईमान वालों की शान ये है कि हमने जो उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। तो मिन मा है, ये मिन तबईजिया है, तो मुराद है जो हमने उन्हें दिया है उसमें से कुछ हिस्सा खर्च करते हैं। तो अगर वाजिब खर्च करें तो वही ज़कात है, बतौर सदका या नफल जो है खर्च करें तो वो गैर वाजिब, ये नवाफिल सदकात हैं। तो मुराद इससे दोनों हो जाएंगे कि हमने जो उनको दिया उसमें से कुछ खर्च करते हैं। तो देखिए 2.5% ज़कात है तो वो खर्च करते हैं ईमान वाले। तसद्दका अलैहि, उसने उस पर सदका किया, मतलब यह है आताहु सदका था, यानी उसने उसको सदका दिया। आता योती बाब इफ़ाल से है, ईदाहातुन नहविय्यतुन नहवी वजाहतें, फवजद फीहा जर्रतन, उसने उसमें मटका पाया। तो देखिए अल अकारो मुजक्करुन, अकार मुजक्कर है, व अन्नसहु, और इसको जो है यहाँ मुअन्नस जिक्र किया है क्योंकि हा जमीर का मर्ज अकार है, तो ये जमीर बता रही है कि आकार यहाँ मुअन्नस है। तो आकार लफ्जों में तो मुजक्कर है लेकिन इसको जो है वो मुअन्नस यहाँ जिक्र किया, इसलिए कि इस आकार से मुराद यहाँ पर अर्द है। तो जब आकार से मुराद अर्द है, अर्द मुअन्नस से समाई है, तो आकार भी मुअन्नस से समाई हो गया। इन नमा बिअतुकल अर्दा, मैंने तुमको जमीन बेची, तो इन नमा की असल इन माँ है, इन दखलत अलैहा माँ, इन है कि उस पर माँ दाखिल हो गया है, यानी माँ आ गया है इनके साथ। इन्ना है तो इसकी असल इन्ना के इस पर माँ दाखिल हो गया तो इन नमा हो गया। देखिए इन्ना का अमल ये था कि ये हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल है, तो अपने इसम को नसब, खबर को रफा करता है, लेकिन जब माए काफा दाखिल हो जाता है तो वह अमल से रोक देता है। तो काफा कहते हैं इसी वजह से रोकने वाला, कफ़ा या कुफ़्फ़ु से काफा, तो रोकन अमल से रोकने वाली माँ है ये। तो इन्ना पर माए काफा दाखिल है, माए जायदा बोलते हैं, फ़कफ़्फ़तहा अनिल अमली, तो इसने इन्ना को अमल से रोक दिया है। व तुफीदु हीना इदिन, अब ये कि इसका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, तो कहते हैं हाँ फायदा है इसका, इस वक्त जो है यह हस्र और तायीन का फायदा देता है, यानी अब इसके जरिए हस्र पैदा हो जाता है। जैसे इन्नमल मुमिनूना इख्वह, तो बेशक मुसलमान ही भाई भाई हैं, तो इख्वतुन जो बाद में होता है उसके अंदर हस्र पैदा हो जाता है, तो मोमिनीन ही भाई भाई हैं। ऐसे इन्नमस सदकातु लिल फुकराई वल मसाकिन, के सदकात वाजिबा, जो ज़कात या फितरा हैं, ये सदकात वाजिबा फकीर और मिस्कीनों के लिए ही हैं, यानी इनके लिए ही हैं। तो इन्नमा से देखिए हस्र और तायीन पैदा हो रही है। अज़कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, या हबीब तुम फरमा दो कि मैं तुम्हारी ही तरह बशर हूँ, लेकिन तुम्हारी ही तरह बशर हूँ इस माना कर के मैं खाता पीता हूँ चलता हूँ, मेरा जो है लिबास बशरी में तुम मुझको देखते हो, अलबत्ता फर्क जमीन और आसमान का है, तुम्हारी हकीकत कुछ और मेरी हकीकत कुछ और है, मेरी हकीकत सिर्फ रब जानता है। तो मैं तुम्हारी ही तरह बशर हूँ इस माना करके मैं इस बशरी लिबास में आया हूँ, वरना तो सारी कायनात का वजूद मेरे वजूद से है, क्योंकि मुझ पर वही नाजिल होती है, मैं अल्लाह का फिरिस्तादा हूँ। तो इससे कोई ये ना समझ ले कि हुजूर हमारी तरह जो है बशर हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि
तुम्हारी ही तरह बशर अल्लाह ने बना कर भेजा ताकि तुम्हारे अंदर जो है उनसियत पैदा हो जाए, मुझसे तुम करीब हो जाओ, वरना तो मैं तो नूर हूं हकीकत में। और फिर हदीसी और हदीस में आया इन्नमल आमालु बिन्निय्याति के अमाल का मदार नियतों ही पर है। तो अमाल का मदार नियतों पर है, इससे मुराद ये है कि अमाल का सवाब नियतों से ही है। अगर नियत करेंगे हम तो सवाब मिलेगा, वरना नहीं। जैसे हम वुजू बनाते हैं तो अगर उसमें नियत करेंगे तो सवाब मिल जाएगा, और अगर वुजू में नियत नहीं की तो सवाब नहीं मिला, वुजू हो जाएगा। तो वतदखुलु इन्नमा अलल जुमलतिल फ़िअलिय्यति अयदन, और इन्नमा ये जुमला फ़िअलिया पर भी दाखिल हो जाता है, क्योंकि अब माए काफ़ा ने जब इन्ना का अमल रोक दिया, तब तो चाहे इसम पर दाखिल करो या फ़िअल पर दाखिल करो, तो जुमला फ़िअलिया पर भी दाखिल हो जाएगा। जैसे इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो अमरा यअमुरु नसर शुरू से है। तो बेशक आबाद करते हैं अल्लाह की मस्जिदों को मन वो लोग कि जो ईमान लाए अल्लाह और यौम आखिरत पर। तो आमना यूमिनो ईमान बाबे इफ़ाल से है। और 3 नंबर पर है बिअतुकल अर्दा, मैंने तुझको जमीन बेची। तो देखिए मैंने बेची तुझको जमीन, इसका मतलब बेतु जो है इसके 2 मफ़ऊल हैं, तो ये मुतअद्दी ब 2 मफ़ऊल है। फरमाते हैं यतअद्दा बाअ इला मफ़ऊलैन, बाअ यबीउ 2 मफ़ऊल की तरफ मुतअद्दी होता है। तक़ूल आप कहते हैं अतबीउनी सय्यारतका, क्या बेच रहा है तू मुझे अपनी गाड़ी। तो देखिए यहाँ पर या जमीर मुतकल्लिम की 1 मफ़ऊल, सय्यारत का ये दूसरा मफ़ऊल। चौथे नंबर पर है ली गुलामुन, मेरा एक लड़का है। यहाँ गुलाम मुब्तदा मुअख्खर है और ली साबितुन वगैरह से मुतअल्लिक होकर यह खबर मुकद्दम है, और ऐसे ही ली जारियतुन और अलकुमा वलदुन के अंदर तरकीब है। अब देखिए मुब्तदा में असल तो यह है कि वो मारिफा होता है, लेकिन अगर जो है नकरा हो जाए तो कुछ जगह में जो है वो नकरा भी मुब्तदा वाक़ हो जाता है। कब? जबकि खबर जो है शिबह जुमला बने और वो खबर उस पर मुकद्दम हो जाए तो बन जाएगा, क्योंकि उस नकरा के अंदर जो है वो नकारत थोड़ी कम हो जाएगी। तो मुब्तदा में असल ये है कि अन यकून मारिफतन, के वो मारिफा हो, वयजूज़ु अन यकून नकिरतन फी मवादिआ, लेकिन ये भी जायज़ है कि मुब्तदा नकिरा वाक़ हो जाए, चंद जगह में ये जायज़ है। उनमें से एक जगह ये है कि अन यतक़द्दम अलैहिल ख़बरो, कि मुब्तदा पर खबर मुकद्दम हो जाए, और खबर वो शिबह जुमला हो। शिबह जुमला का मतलब है आई ज़र्फ़ुन, यानी ज़र्फ़ हो, और जारुन और मजरूरुन, या जार मजरूर हो। तो जैसे इंदी किताबुन, मेरे पास किताब है, तो देख किताबुन नकरा है, तो ये मुब्तदा बन जाएगा, क्योंकि खबर जो शिबह जुमला बनेगी तो वो मुकद्दम है, क्योंकि मौजूदुन इंदी, मेरे पास मौजूद है किताब, तो मौजूदुन इंदी खबर मुकद्दम है। ऐसे ली अखुन, मेरा भाई है, तो ये भी जो है यहाँ जार मजरूर से का मुताल्लिक जो शिबह जुमला बनकर यह खबर मुकद्दम हो जाएगी, और अखुन यह मुब्तदा मुअख्खर नकरा वाक़ हो गया, क्योंकि खबर का मुकद्दम होना ये मुब्तदा नकरा के मुब्तदा वाक़ होने को सही कर देता है। यहाँ साबितुन निकालेंगे, साबितुल्ली, मेरे लिए साबित है भाई। 5वां पॉइंट है बिमा फीहा, तो बा जो है ये मुसाहबत यानी मईयत के माने में है। तो फरमाते हैं मिन मानिल बाई अल मुसाहबत, तो बा के मानी में से एक माना क्या है? मुसाहबत है, यानी साथ में होना, मईयत। तो मिन मानिल बाई, ये भी देखिए खबर मुकद्दम है, अल मुसाहबत मुब्तदा मुअख्खर है। जैसे कहते हैं इहबित बिसलामिन, तो उतर जाओ तुम सलामती के साथ। तो बा यहाँ मईयत मुसाहबत के माने में है, मुराद ये है आई मा सलामिन। वमिनहु कौलुहु, और इसी से है यह हदीस पाक में इन्नमा बिअतुकल अर्द बिमा फीहा, मैंने तुमको जमीन बेची है उसके साथ जो जमीन में है। तो बिमा फीहा यानी मा मा फीहा, ये बा मा के माने में है। वलियुनफिका,
تو हादिही लाम अम्र, ये लाम अम्र है। वल युनफिका, तो तदखुल लाम अम्र अलल मुदारिई, तो लाम अम्र ये मुजारे पर दाखिल है। व तजजिमुहु, और मुजारे को जज्म कर रहा है। कैसे? क्योंकि युनफिकानी आखिर में नून एराबी था, तो नून एराबी को इसने जो है गिरा दिया, तो ये आखिर में जज्म कर रहा है। वह तुफीदुल अमरा, और ये अम्र का फायदा दे रहा है क्योंकि लाम अम्र है। तो जैसे लियजलिस कुल्लु तालिबिन फी मकानी, चाहिए कि हर तालिब इल्म अपनी जगह में बैठ जाए। तो ये लाम अम्र है। देखिए लामुल अम्र मकसूरतुन, अब लाम अम्र जो है वो मकसूर होता है, लेकिन यहाँ तो मकसूर नहीं है, यहाँ साकिन कैसे हो गया? तो उसकी वजह बयान करते हैं। व तुसक्कनो बादल वावी वल फाई, तो लेकिन लाम अम्र साकिन कर दिया जाता है वाओ और फा के बाद। जैसे मन अरादा अन यखरुज मिनल फस्ल फलयखरुज वलयذهब इला गुरफतिही, जो इरादा करे निकलने का जमात से तो वो निकल जाए और चला जाए अपने कमरे की तरफ। तो देखिए फल यखरुज वल यذهब, फा के बाद भी लाम अम्र साकिन है, वाव के बाद भी साकिन है। वल युनफिका अला अनफुसिहिमा, और चाहिए कि दोनों अपने ऊपर खर्च करें। तो अनफुसिहिमा बिल जमे, जमा के साथ कहा है यहाँ, तो ऐसा क्यों? क्योंकि दो, जब बीवी और शोहर होंगे तो वो अपने ऊपर खर्च करेंगे। नफ्सई हिमा होना चाहिए था, वलम यकुल नफ्सई हिमा, तो नफ्सई हिमा नहीं कहा। उसकी वजह क्या है? तो देखिए उसकी वजह ये है कि इंसान में जो चीज सिर्फ एक ही हो तो उसमें तस्निया को जमा के लफ्ज के साथ लिख दिया जाता है। तो अगर तस्निया की तरफ इजाफत हो उसकी, तो उसे जमा के साथ लिख दिया जाता है। वो फरमाते हैं कि मा लैसा फिल इंसान मिनहु, ये क्योंकि वो चीज के इंसान में उस चीज में से ना हो मगर एक ही, मतलब मा लैसा फिल इंसान मिनहु इल्ला वाहिदुन, तो जो चीज इंसान में सिर्फ एक ही हो, तो जाजा अन युजअल इसनान फीही बिलफ्जिल जमी, तो ये जायज है कि उसमें तस्निया को लफ्ज जमा के साथ जिक्र कर दिया जाए। कब? जबकि तस्निया ही मुजाफिले हो, जैसे यहाँ जमीर मुजाफ तस्निया की है। तो इसी से अल्लाह का फरमान है फ़क़त सग़त क़ुलूबुकुमा, के टेढ़े हो गए तुम दोनों के दिल। तो यहाँ पर देखिए दोनों के दिल, तो दो दिल होंगे ना, लेकिन ये दिल ऐसी चीज है कि इंसान में एक ही चीज एक ही होती है। अब कुलूब की इजाफत तस्निया की तरफ है, इसलिए तस्निया को यहाँ जमा से ताबीर कर दिया गया और कल्बान की जगह कुलूब ले आए कि टेढ़े हो गए तुम दोनों के दिल। वसासी कुरान में है वसारिक वसारिकतु फक़तउ अयदियहुमा, चोर और चोरनी के दोनों काट दो उन दोनों के हाथ। तो यहाँ मुराद है दाहिने हाथ काटो, तो उन दोनों के दाहिने हाथ काटो। देखिए यहाँ सारिक और सारिका, तो मुजक्कर पहले मुअन्नस पहले है। कुरान की बलागत देखिए और इसमें कितनी गहराई है कि सारिक पहले है सारिका बाद में, हालांकि सारिका पहले हो जाता, जैसे अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, वहां जो है मुअन्नस पहले है। लेकिन यहाँ वजह देखिए ये है कि चोरी में मर्द आगे है, औरत चोरी नहीं करती है। रात में मर्द ही चोरी करने के लिए निकलते हैं ज्यादातर, और क्योंकि चोरी करना ये दिलेरी का काम है, तो कुरान ने पहले मुजक्कर को बयान किया सारिक, क्योंकि सरका का माना आदमी के अंदर ज्यादा पाया जाता है। तो चोर और चोरिनी इन दोनों के दाहिने हाथ काट दो। कतआ यक़तउ फतह यफ्तहु से, और सरका यसरुको नसर शुरू से ही। तो फरमाते हैं कि उन दोनों के दाहिने हाथ काटो। हाथ, दाहिना हाथ तो दोनों में एक ही एक होगा, तो दाहिना हाथ देखिए एक ही है, तो इंसान में जो चीज एक ही हो उसकी इजाफत जब तस्निया की तरफ की जाएगी तो वहां तस्निया को जमा से जिक्र कर दिया जाता है। ऐसे यहाँ अयदिया हुमा कह दिया गया। तो फरमाते हैं अल मुरादु बिल यदि, यद से मुराद यहाँ हो होनल यमीनो, यहाँ पर दाहिना हाथ मुराद है। वलिकुल्ल वाहिद मिनहुमा, और चोर और चोरनी में से हर एक का जो दाहिना हाथ होगा यमीनुन वाहिदतुन, वो तो एक ही होगा।
اس وجہ سے یہاں تسنیہ کو جمع سے تعبیر کر دیا گیا۔ وجدہ من اخوات زنہ، یہ زنہ کے اخوات میں سے ہے وجدہ۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا علمت ظننت حسبت قلت وجدت، یہ افعال قلوب میں سے ہیں۔ هذه الافعال، اب افعال قلوب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ افعال تنصب مفعولین، دو مفعول کو نصب دیتے ہیں، اصلہما، جن دونوں مفعول کی اصل مبتدا اور خبر ہوتی ہے۔ جیسا الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ مبتدا خبر ہے، لیکن آپ نے جو ہے افعال قلوب میں سے کوئی داخل کر دیا تو دونوں مفعول بن جائیں گے، وجدت البابا مفتوحا، میں نے دروازہ کھلا ہوا پایا۔ لیکن فرماتے ہیں رہا وہ وجدہ کہ جو ظفر بالشیء بعد ضیاعہ کے معنی میں ہے، مطلب تو وجدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے گمنے کے بعد مل جانا، یعنی پانا۔ تو وجدہ کا معنی جو ہے وہ پانا، مل جانا، تو وہاں پر جو ہے یہ صرف ایک مفعول کو بھی نصب دے سکتا ہے۔ تو رہا وجدہ جو ظفرہ بالشیء بعد ضیاعہ کا مطلب کسی چیز کے کھونے کے بعد اس چیز میں کامیاب ہو گیا، مطلب وہ چیز مل گئی۔ تو اس معنی میں جو وجدہ ہے فتنصب مفعول واحدہ، یہ ایک مفعول کو نصب دیتا ہے، جیسے ضاع مفتاحی، میری چابی کھو گئی، ووجدتہ بعد بحث طویل، اور پا لیا میں نے اسے بہت دیر ڈھونڈنے کے بعد۔ تو یہاں پر دیکھیے وجدتہ کا ایک ہی مفعول ہے، ہا ضمیر۔ اب نواں پوائنٹ ہے کانا فیمن کانا قبلکم، تھے ان میں جو تم سے پہلے لوگ تھے، ان میں ایک شخص تھا۔ تو تفیدو یہاں دیکھیے فی من کا مطلب ہے مع من، ان لوگوں کے ساتھ تھا جو تم سے پہلے تھے۔ تو تفیدو فی یہاں پر مصاحبت کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی معیت کے معنی میں ہے۔ کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ کے فرمانے میں ہے قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم، تو کہا کہ داخل ہو جاؤ تم ان لوگوں کے ساتھ، ان امتوں کے ساتھ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو تم سے پہلے گزر گئے۔ تو یہاں پر فی اممن کا مطلب ہے ای مع اممن معہم، یعنی ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ تو تم سے پہلے گزر گئے۔ تکتبو فی متصلتن، اب معاملہ یہ ہے کہ فی من اور ما سے ملا کر لکھا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں من ما الموصولتین، یہ دونوں موصولہ بھی ہوتے ہیں، اول استفہامیتین اور استفہامیہ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کنتو فی من حج ھذا العام، تو جیسے یہاں کانا فی من کانا قبلکم، تو فی من، تو فی کو من کے ساتھ ملا دیا اور ما کے ساتھ بھی ملا دیا تھا۔ تو جیسے اس مثال میں آپ دیکھیں کنتو فی من، تھا میں ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے حج کیا اس سال، تو یہاں فی ما کے معنی میں ہے اور فی من کے ساتھ متصل ہے۔ ایسے فی من تشکو، کس شخص کے بارے میں تو شک کر رہا ہے، تو فی من، یہ فی من کے ساتھ مل گیا، اور دو پہلے میں من موصولہ ہے اور دوسرے میں استفہامیہ ہے۔ ایسے فی ما ترغب، دیکھیں ما ہے یہ فی ما، اب ما موصولہ اگر ہو تو جب اس پر حرف جار داخل ہوتا ہے تو اس کا الف گر جاتا ہے، جیسے فیما، ایسے ہوتا لما، ایسے ہوتا اما یتساءلون، تو اما میں ان حرف جار اور ما موصولہ ہے، تو جہاں ما استفہامیہ ہو تو ما استفہامیہ پر جب حرف جار داخل ہو تو اس کا الف گر جاتا ہے۔ جب فی ما ترغب، کس چیز کے بارے میں تو رغبت کرتا ہے، رغبت رکھتا ہے۔ ایسے ارغب فیما ترغب انت، میں رغبت رکھتا ہوں اس چیز کے بارے میں جس میں تو رغبت رکھتا ہے۔ تو ما موصولہ میں دیکھیے الف نہیں گرا، ما استفہامیہ میں گرا دیا جاتا ہے۔